The geopolitical scenario will always impact the import export of any country. लास्ट फ्यू मंथ से मैंने सबसे कम शिपमेंट किया है बिकॉज दुबई मार्केट पोर्ट्स भी बंद थी। देन कोरफकान पोर्ट है दुबई में, वो चालू हुई तो उसमें भी ब्लास्ट हो गया। ईरान से मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होता था पिस्ताशियो का, ड्राई फ्रूट्स का, तो वो पूरा बंद हो गया। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को और उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ता है एंड यू हैव टू गो विद इट, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से। In the last 5 years, say, how has the Indian government really worked on the export market? दैट वाज लाइक कि मैंने बहुत मेहनत से इसको बिल्ड किया है। इफ यू नॉट लुक आफ्टर इट तो दैट्स नॉट राइट एंड ही वाज नॉट एट ऑल ओके विद इट। Hello and welcome to the Insights with Midas, a very exciting episode for anyone who has actually thought of building beyond borders, going global, and taking their small family businesses or their startups and exporting them. This one's for you. Today we're going to meet Siddharth Jain, the name that really resonates from Eximify, a platform that has actually enabled and helped so many exporters and importers out there. What I've really enjoyed knowing about Siddharth is the fact that he has executed what he had started. I hope you all enjoy this journey and understanding of the export and import market in India and understand what geopolitics does to this market as well. I hope you all enjoy. Stay tuned and watch till the end. Hi Sid, I'm so excited to do this podcast with you. And for the longest time, we've been having this conversation of you coming to Midas. And I think it's very special that you're here and you're going to be inspiring so many people out there. Having this conversation with you was very important to me because you've done exactly what is expected out of the students of Midas. Having a business that's been in family for a long time, a generation that's created a lot of wealth, and how you exponentially grow everything into the real market. Right. And I want to understand कि business का कीड़ा पहले कब शुरू हुआ, बचपन में what was that moment when you felt यार मुझे ये करना है and this is how I want to grow? Was there a moment or was it a journey? So there was a moment, to be honest, जब मैं अपने डैड को देखता था बिकॉज अर्लियर हमारे पास उतनी फाइनेंशियल टर्म्स में वी वर नॉट दैट मच स्टेबल। फिर मैं डैड के हार्डवर्क के कारण मैं अपना लाइफ चेंज होते हुए देखा बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे पहले लाइफ में। देन डैड डिड रियली गुड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड मैं हमेशा से मेरे दादाजी के साथ, अपने फादर के साथ मैं हमेशा वर्क पे भी जाता था जब मेरी वेकेशंस होती थी। एंड मेरे लाइफ में मेरा आज तक कोई सेकंड थॉट नहीं रहा है अबाउट बिज़नेस। मैं हमेशा से यही करना चाहता था बचपन से। मैं अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को देख के एंड जो लाइफ उन्होंने हमें दिया है, लाइक सो दैट वाज ऑलवेज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। और मैं कभी सेकंड थॉट भी नहीं लिया टू स्टार्ट टू एंटर इनटू दिस बिजनेस या उसको एक्सपैंड करने का। हमेशा से आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपैंड आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो डोमेस्टिकली हम लोग के लाइक 50 ईयर्स से चल रहा है। क्या था वो बिजनेस जो आप? सो आई विल टेल यू माई बैकग्राउंड। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड and we are into agricultural commodities trading for past 50 years for like spices, rice, dry fruits and jaggeries especially. So my dad started this jaggery business when he was like 21 years old, and right now we have he has a monopoly in 2 states right now for jaggery, which is also used for making liquor, which is called desi daru. So उन्होंने बहुत
challenges, बहुत सारे funds arrange करके he sold his bike and then he started this business and अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है. So when I entered into my family business, when I got done with my bachelor's and I entered into my family business, so for like 2 years I was observing everything, how business works in ground level. So मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था. आई वाज सीइंग ऑल मंडी डायनामिक्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस लोकल बिजनेस में चलता है, एंड बायर से कैसे कन्वर्सेशन किया जाता है, हाउ टू एक्वायर बायर, सप्लायर से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखा जाता है. एंड सबसे वर्स्ट पार्ट था उसका वो है क्रेडिट साइकिल. तो मैं बिज़नेस ज्वाइन किया और जब मैंने क्रेडिट साइकिल देखा हमारे बिज़नेस का, सो इट वाज लाइक 30 डेज़, 90 डेज़, 150 डेज़, तो ऐसे क्रेडिट साइकिल चल रहा था. एंड दैट टाइम आई थॉट कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ. आई वांट समथिंग फास्टर जो मुझे मेरे मनी को ज़्यादा जल्दी रोटेट कर पाए और मेरे पेमेंट टर्म्स बेटर रहे. तो आप क्रेडिट में कुछ देते हो तो डिफ़ॉल्ट्स भी बहुत सारे होते हैं. आप अगर पेमेंट आप क्रेडिट में आप किसी को माल दे रहे हो, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग इन क्रेडिट, तो उसमें डिफ़ॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो मेजर रीज़न था कि आई वाज लाइक कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये, और मेरे पे इतना करेज नहीं है कि मैं किसी को इतना अमाउंट का कुछ दे के और फिर वो बैड डेब्ट्स हो जाए. सो आई वाज लाइक क्या. देन जब मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया उसके पहले अपने बैचलर्स के साथ साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस. और जब मैं ऑनेस्टली वो ज्वाइन किया था तो मेरा सारा फोकस और मेरा सारा इंटरेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स में ही था रादर दैन माय कॉलेज स्टडीज़. सो आफ्टर दैट मैं जब एक्चुअली एंटर किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, मेरा एक रीज़न था, एक चैलेंज आ रहा था कि अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में काम करते हो, एंड वो सब रिलेट करेंगे कि मैं एक स्टेट में काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं कोई दूसरे स्टेट में, एग्जांपल में महाराष्ट्र में मेरा कोई मोनोपोली है, मैं चाहूँगा कि मैं पुणे या मैं गुजरात जाके सेम चीज़ कर लूँ. वो पॉसिबल नहीं है अभी के मार्केट में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है. और कोई 20-30 साल से बैठा हुआ वहाँ पर और बिज़नेस कर रहा है तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा. So then I thought कि why like we should go global instead. मुझे लगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड बहुत ज़्यादा बेटर पेमेंट साइकिल एंड बेटर पेमेंट टर्म्स है. सो देयर आई स्टार्टेड, बिकॉज मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था अपने बिज़नेस में. 2 साल में था बिज़नेस में एक्सपैंड करने के लिए, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था मेरे लिए. एंड वहाँ से मेरा एक्सपोर्ट जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड देन हमारी, जैसे मैं बताया, हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में अच्छी बैकग्राउंड है. मैं बचपन से वही देखा हूँ, मैं सीखा भी वही हूँ. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद जैगरी इटसेल्फ. हमारी जैगरी की अच्छी सोर्सिंग है, हमारे बैकग्राउंड है, एंड हमारे सप्लायर्स भी बहुत समय से कनेक्टेड है. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और एक्जिमफाई के बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो, व्हाट वाज ऑनेस्टली दैट idea, that concept that came into your mind, and what does it really do? So when I entered to export market, मैं बहुत कुछ ट्राई किया. तो मैं अपना बताता हूँ मुझे पहले शिपमेंट कैसे मिली. सो मेरे पास बस IEC कोड था जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड. मैं वो बना लिया. देन आई वाज एग्रेसिवली लुकिंग फॉर इंटरनेशनल बायर्स. तो मैं 2 months तक आई कीप सेंडिंग मेल्स, लिंक्डइन में मैसेज करते रहा. देन मेरी डील क्लोज हुई जो कि थी UAE से, दुबई से, फॉर जैगरी इटसेल्फ. तो आई वाज लुकिंग फॉर एडवांस, और मैं न्यू था इस फील्ड में, तो मुझे कोई क्यों एडवांस देगा, राइट. तो मैं क्या प्रेफर किया, मैं सोचा आई विल ट्रैवल टू UAE. मैं दुबई गया, मैं ओमान गया, मैं बहरीन गया. मैं वहाँ के सुपर मार्केट्स, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स, वहाँ के कंज्यूमर के बिहेवियर्स एंड वहाँ के इंडियन गुड्स क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पे. तो मैं पूरा वहाँ पे टाइम दिया, मैंने रिसर्च किया सब कुछ. एंड मैं पहले भी GCC कंट्रीज़ टारगेट कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि इंडियन फूड्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे. बीट स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, पेरिशेबल गुड्स, एवरीथिंग. तो फिर मुझे जिस बायर से मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था और जो अग्री नहीं कर रहे थे मुझे एडवांस देने के लिए, तो मैं उनके पास गया, मैं सैम्पल्स लेके गया. तो हमारे पास क्या है ना, बहुत डिफरेंट टाइप्स के जैगरी होते हैं.
लाइक मोदक जैगरी, जैगरी क्यूब्स, जैगरी कैंडी, तो मैं सब सैम्पल लेके गया था एंड ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड ही लाइक माई नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. सो मेरी उनसे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई और मैं बाकी बहुत सारे बायर्स से भी मिल के आया था, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की भी, टू बी ऑनेस्ट. तो मैं वापस आया इंडिया एंड इंडिया आने के बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिला उसी बायर से. इट वाज फॉर 10 टन्स ऑफ जैगरी. तो एंड वो अग्री भी कर गए 20% एडवांस के लिए नाउ. एंड वो क्यों ज़रूरी है एडवांस? बिकॉज ये जो प्रोडक्शन होता है ये बहुत हायर क्वालिटी के लिए जैगरी होते हैं जो मैं लोकल मार्केट में मैं नहीं सेल कर सकता था उस चीज़ को, और उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम परसेंटेज ऑफ एडवांस ताकि मैं सिक्योर्ड रहूँ. क्या पता मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद पेमेंट नहीं आया. सो बहुत सारे रिस्क थे, तो मुझे 20% एडवांस मिल गया एंड मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया. बट जब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास आईसी कोड के अलावा बाकी सारे जो कंप्लायंस चाहिए एक्सपोर्ट के लिए वो थे ही नहीं. अब मेरे बायर को बहुत ज़्यादा अर्जेंट शिपमेंट था, वरना वो किसी और से इंपोर्ट कर लेते. सो व्हाट आई प्रेफर्ड कि मेरे जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, महाराष्ट्र की है वो. तो मैं उनसे बात किया कि मुझे ऐसे ऑर्डर आई है एक्सपोर्ट की, क्या मैं आपके फर्म से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता था वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस, कनाडा, सब जगह उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही थी. तो मैं उनसे पूछा एंड ही वाज ओके विद इट, क्योंकि मैं बोला हमारी पहली रिलेशन भी थी, तो ही वाज ओके विद इट. एंड थैंकफुली शिपमेंट सक्सेसफुल गया. एंड वो फर्स्ट शिपमेंट जाने के बाद आई फेल्ट लाइक कि हाँ अब जर्नी स्टार्ट हुआ, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग होता है. बिकॉज मैं उसके लिए आई स्पेंड अराउंड 3-4 मंथ्स मेरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और मैं अपने डोमेस्टिक बिजनेस में भी पार्ट नहीं ले रहा था. मैं अपने डैड को बोल दिया था आई वांट टू एक्सपैंड इट, आप मुझे समय दो एंड आई विल प्रूव यू. तो मुझे ऑर्डर्स आया. उसके बाद फिर मुझे रेगुलर ऑर्डर आने लग गए उस बायर से 5 टन 10 टन्स के जैगरी के. बट डीप डाउन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज ये उतना लार्ज स्केल पे नहीं हो पा रहा था. हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में वी सेल अराउंड 100 टन 150 टन, राइट. तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. देन मैं दूसरे प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर करने लग गया, राइस, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्पाइसेस एंड साइमल्टेनियसली मैं इंपोर्ट्स के लिए I started importing dry fruits from Iran, apples. Then I started working in importing of scraps, जो aluminium and copper to be precise. And वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मैं बहुत कुछ I learned a lot फील्ड में वर्क करके. I used to travel all the time, वियतनाम, थाईलैंड, दुबई. एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया और साइमल्टेनियसली मैं साथ में अपना सोशल मीडिया पेज भी स्टार्ट किया. मैं जो कर रहा था आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट. मैं मेरे जो भी लाइफ में चल रहा था, जो भी मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा था या उस पर वर्क कर रहा था, आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टेड विथ मी. वो लोग कनेक्ट कर रहे थे एंड मेरी एक कम्युनिटी बन गई. मुझे भी नहीं पता चला कब फॉलोअर्स 10,000 से 50K से 200K हो गया, वो पता भी नहीं चला. फिर जब मेरी फॉलोअर्स ग्रो हो रही थी तो एक्चुअल एक्जिमिफाई कंटेंट से लेके एक्चुअल बिजनेस बना जब हम वी स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ आवर फॉलोअर्स. तो अब कोई भी इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट तो क्लैरिटी नहीं रहती है, मुझे भी नहीं था वो चीज़. सो बहुत सारे चीज़ होते हैं कि राइट प्रोडक्ट क्या है, किस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहिए, पेमेंट टर्म्स कौन से सही है, मैं अपना इंटरनेशनल लेवल पे मैं अपना बेस कैसे बना सकता हूँ, क्रेडिबिलिटी कैसे बना सकता हूँ. सो मेरी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, मैं जहाँ पे भी वर्क कर रहा था, आफ्टर दिस मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने लग गए फ्रॉम वियतनाम, थाईलैंड, ओमान, बहरीन, साउथ कोरिया इवन. तो फिर मेरी ऑलरेडी नेटवर्क बन चुकी थी और हमारे खुद के भी कंपनीज हमने सेटअप कर लिया था फ्यू कंट्रीज़ में, दुबई में, वियतनाम में. तो हम अब हमारे फॉलोअर्स को जिनको ग्लोबली रीच करना है दूसरे मार्केट्स में, हम उनके लिए वो नेटवर्क हमने ओपन कर दिया. अब आपको एक्सपोर्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सपोर्ट मार्केट वर्क्स से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके शिपिंग, लॉजिस्टिक्स सब हम हैंडल कर रहे हैं. एंड वो इंटरनेशनल मार्केट में वो सिक्योर भी रहते हैं हमारे साथ वर्क करके. तो ये हमने मॉडल बनाया है कि पेमेंट टर्म्स बहुत सेफ रहता है. मैं यहाँ मुंबई में बैठा हुआ हूँ
हमारी कंपनी है और सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उनकी पेमेंट एकदम सेफ रहेगी। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होता है, इट्स ऑन एक्सिमिफाई, हम क्लियर करेंगे वो, आपको आपका पेमेंट मिलेगा। So that's how we started expanding Eximify, and we are still trying to grow in different markets. Wow. So I whilst you were talking, I didn't want to interrupt, but there were so many questions that were coming in my mind. The first thing was कि अपने पापा को आपने कैसे समझाया that it's time you do something of your own, which is not just domestic, going international and getting money into the business, which also needs you to spend some money on you to get it working. How did you? So वो सबसे ज़्यादा challenging part था. My dad was like, हमारी as I told you 50 years old business है, and my dad was like कि मैंने बहुत मेहनत से इसको build किया है, if you'll not look after it, तो that's not right, and he was not at all okay with it. वो चाहते थे कि मैं business join करूँ और वहीं पे एक्सपैंड करूँ, बट अब मैंने डैड को कहा कि मुझे आप 6 months का टाइम दो, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, मुझे नॉलेज है एंड आई कैन डू इट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है एंड यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने जैसे फर्स्ट शिपमेंट किया, ही वॉज नॉट ओके विथ इट। मैं अपने होम टाउन से मैं मुंबई आ गया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो जब मैंने पहला शिपमेंट लॉक किया, हो गया, मैं डैड को बताया नहीं कि कैसे क्या। उस सप्लायर का डैड को कॉल गया कि ऐसे ऐसे शिपमेंट कर रहा है। देन माय डैड कॉल मी एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मार्जिन में काम किया है ऐसा। सो आई टोल्ड हिम कि अच्छा, बहुत प्रॉफिटेबल था। एंड जब मैं उनको अमाउंट बताया तो अगर वो 5 ट्रक सेल करेंगे तो उतना मुझे मार्जिन मिल गया था एक 10 टन के शिपमेंट में। तो ही वॉज फाइन, ही वॉज लाइक इट्स गुड अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। एंड उसके बाद मैं शिपमेंट्स देन आई डिडंट स्टॉप। उसके बाद मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइव इन किया। मैं बहुत सारे मैं राइस एक्सपोर्ट किया वियतनाम में 5 कंटेनर्स। उसके बाद तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं कभी। एंड ही इज़ रियली हैप्पी एंड he flex me nowadays, like he tell his friends and all that I am doing good. One of the realities of family business that I always tell my students as well, that जब तक आप सेल नहीं लाते हो अपने बिजनेस में, आप लाइबिलिटी हो, और एसेट तभी बनोगे जब सेल लाओगे। 100%। और वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से बिल्ड किए हैं ये बिज़नेस, और आप बोलोगे कि यू डोंट वांट टू कम इनटू दिस बिजनेस, तो दैट्स वेरी hurtful for them. So time मांगो और prove करो. And prove करो. That's how it should be. Yeah, that's only the solution. And communicate. And communicate. Because the more that I'm talking to the generation, problem is communicate ही नहीं कर रहे. So it's always like कैसे बताऊँ, क्या करूँ. So it's around that. One of the other questions that had come to my mind was, आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या था अबाउट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग समथिंग? करने निकल पड़े, बट मिसकंसेप्शन क्या था आपका? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था कि मुझे लगता था ऑनेस्टली कि ये बस जो ट्रेडिशनल पहले से बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है, वही ये बिज़नेस कर सकते हैं। एंड रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपके पास इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, आपके पास राइट नॉलेज है, सो यू कैन बिल्ड योर ग्लोबल कंपनी ईजीली राइट नाउ, लाइक इन 2026, बिकॉज इंफॉर्मेशन और बायर्स और मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है राइट नाउ। सो ये मैंने जब बस फ़र्क ये है कि आप थ्योरेटिकल वे में सीखने से नहीं होगा, यू हैव टू डू एवरीथिंग प्रैक्टिकल। जैसे मैं अपना कंफर्टेबल बिजनेस छोड़ के, जहाँ पे मुझे चेयर में बैठना रहता था, एंड आई हैव टू टॉक टू ऑल द कस्टमर्स एंड ऑल, वो छोड़ के मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क किया बहुत ज़्यादा। सो दैट टॉट मी अ लॉट। उससे मैच्योरिटी भी आती है। एंड देन आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट लाइक इफ़ मेरे एक शिपमेंट की वैल्यू 20 lakhs है, 15 lakhs है या 25 lakhs है, दैट someone can easily arrange अगर आपकी ऑलरेडी कोई बिजनेस है, so you can do that easily. So I mean, it's not as easy as it looks. Execution is key.
and you cannot assume that आपको सारा धंधा मिलने वाला है. You have to be out there to make sure. ऑब्वियसली नॉट एट ऑल. मैं आज भी अपने ऑफिस से ज़्यादा मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करता हूँ बिकॉज आई एम एक्सपैंडिंग एक्जिमिफाई राइट नाउ. मेरे को मैं ट्रैवल भी करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स में, लोग से जाके मिलता हूँ, मैं नेटवर्किंग करता हूँ. सो ये कंफर्टेबल बिजनेस नहीं है, मतलब एकदम भी नहीं है. आप डोमेस्टिक बिजनेस में जितना मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा. बट आई एम सॉरी, बट इसका जो रिटर्न है आप जितना मेहनत करते हो उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है. So one more thing that came to my mind was something that's extremely important during your conversation, कि आपकी पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अगर मैंने जितना जाना है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, बट एक पॉइंट के बाद बोलना भी तो ज़रूरी है कि हम कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक द फैक्ट दैट you are out there helping people is also because people are believing in what you're doing and you need to talk about it. Right. So how was building your personal brand important to create this sort of work for your company also? So honestly, I'm going to cut you. Yeah. I remember when I spoke to you, and we've spoken multiple times, where you have said, Pooja, I'm not able to even finish the kind of work that I have. Yeah. And that's the work Eximify is giving you today, where आपके पास हज़ारों में लोग कांटेक्ट करके आपसे काम करवाना चाहते हैं, एंड आज आपके पास टाइम नहीं है. सो हाउ मच हैज़ योर पर्सनल ब्रांड हेल्प? सो इट हेल्प मी अ लॉट. एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएशन एक गैप फुलफ़िल करने के लिए स्टार्ट किया था जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जो है नॉलेज और कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है. बट साथ में बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि आई हैव टू बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी फॉर माई फ्यूचर ऑर्डर्स. क्योंकि मैं कभी किसी बायर से बात कर रहा था तो वो क्रेडिबिलिटी सेट नहीं हो पा रही थी इस बायर के साथ. सो आई वांटेड माई सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो मुझे अभी काफ़ी हेल्प करती है. मैं अभी साउथ कोरिया का डील मैंने क्लोज़ किया. सो ही ट्रस्ट मी बिकॉज people knows me here in India and I'll not do anything wrong or any default. So advance भी easily मिल जाती है. So मैं social media शुरुआत में तो I was like कि अगर मेरी 10,000 followers हो जाते so it's more than enough. मैं easily business कर पाऊँगा, मेरी अच्छी credibility भी हो जाएगी. But it boomed a lot because आप सोशल मीडिया में अगर आ रहे हो, इफ़ यू वांट टू पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट. आप जो भी कर रहे हो वो लोग को, जो आपको देख रहे हो, उनको पता चल जाता है कि इफ़ यू आर लाइंग समथिंग और इफ़ द पर्सन इज़ राइट. मैं अभी तक अपने सोशल मीडिया में मैं किसी को भी गलत इन्फ्लुएंस नहीं किया हूँ कभी भी कि बहुत ग्लैमरस है. ऑब्वियसली यू हैव टू, अब जैसे मैं रील्स डाल रहा हूँ, इट शुड बी एंटरटेनिंग कि लोग देखें उसको, बट मैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. और मैं कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं प्लेस कर रहा हूँ कि आप 10 लाख लगा के 5 लाख कमा सकते हो. दैट्स नॉट द बिजनेस इज़. सो मैं अपना सोशल मीडिया धीरे धीरे ग्रो करने लग गया. तो उसके कारण मुझे इंडिया में स्पेसिफिकली मेरे बहुत अच्छे नेटवर्किंग बनने लग गए. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया से बायर्स मिल जाएंगे, इंटरनेशनल बायर्स. वो मेरे साथ बहुत रेयर हुआ है, वंस और ट्वाइस. क्योंकि अब मैं इंडिया में कंटेंट बना रहा हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, तो वो इंडियन मार्केट को ज़्यादा टारगेट करेगा राइट नाउ. सो आपको बायर्स में हेल्प नहीं करता, बट आपको एक फाउंडेशन देने के लिए, आपको एक नेटवर्किंग देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड जैसे आपने बताया, तो मैंने एक फॉर्म डाला था अपने इंस्टाग्राम में. मैं कभी कुछ सेल नहीं किया अपने इंस्टाग्राम में, ना मैं कोई कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, ना मेरा कोई मेंटोरशिप है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है. मैंने एक फॉर्म डाला था कि यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस विद अस. सारे फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू शिपमेंट, सब कुछ हम लोग करवा के देंगे. मैं एक फॉर्म डाला तो उसमें 1600 लोग ने इनरोल किया, और वो गलती से मेरे कंपनी के नंबर भी उसमें थे जिसने फॉर्म बनाया था. तो वो फ़ोन हमें ऑफ़ करना पड़ा बिकॉज 1600 यहाँ पे मेरे को अगर कुछ बस टीचिंग प्रोवाइड करना पड़ता या थ्योरेटिकल चीज़ प्रोवाइड करना, तो आई वुड हैव डन दैट. एंड इट्स, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है मेरे हिसाब से, बिकॉज
हम कुछ भी चार्ज करते मिनिमम 20,000 भी, तो वो बहुत ज़्यादा होता. बट आई वाज लाइक कि ये बहुत ज़्यादा ईजी इनकम है, तो इस वे में अभी नहीं जाते हैं, बिकॉज मुझे अब नेटवर्क और अपना एक्जिमिफाई को और एक्सपैंड करना है. सो हमारे जब ये फॉर्म्स में लोग आने लगे, कॉल आने लगे, तो मुझे वो बंद करना पड़ा प्रॉपरली. मुझे उन्हें बोलना पड़ा कि वी कांट एंटरटेन यू राइट नाउ, बिकॉज इतने सारे लोगों को प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट कराना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ. उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए. सो दैट्स हाउ इट वेंट एंड मैं खुद के शिपमेंट्स के से ही टाइम नहीं निकाल पाता हूँ. उसके बाद मुझे सोशल मीडिया भी देखना है और दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपैंड भी करना है अपनी कंपनी को. एंड फिर हमारे फॉलोअर्स को भी देखना है, उनके डाउट्स होते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट. सो आई फील लाइक हेल्पिंग देम जितना मेरे से हो सकता है. आई कॉल देम टू माय ऑफिस एंड या. So, one of the things that you realized in the last 2 years, that during the time when actual execution happens for our students, even at Midas, major work is also happening on LinkedIn. It's like a great platform for people to connect and get work done. And I heard you mention it. So, can you tell us how important it is to also have that network on your LinkedIn as well? इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई गेस. मैंने जैसे बताया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे लिंक्डइन से ही मिला था. एंड लिंक्डइन में जितना जेन्युइन कन्वर्सेशन होता है, जितने ऑर्गेनिक सर्चेस आप कर सकते हो, आप लोग से कनेक्ट कर सकते हो, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते हो. तो मैं अपना लिंक्डइन में मैं हमेशा से वर्क कर रहा था. लाइक फॉर पास्ट 2-3 ईयर्स मैं हमेशा लिंक्डइन में वर्क कर रहा था. मैं लोग से नेटवर्किंग करता था, आई यूज़ टू कनेक्ट विद देम, बट मैं पोस्ट नहीं करता था कुछ. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑल्सो लिंक्डइन में. एंड लिंक्डइन जितना हेल्प करता है, सो हमारी एक वे है बायर से कनेक्ट करने की. पहले हम बायर का डिटेल्स निकालते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू पोर्ट डेटा, और हमारी खुद की सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू. फिर बायर की डिटेल्स निकालते हैं, उसमें कंपनी डिटेल्स हमें मिलती है. फिर उस कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉयज़ हो या सोर्सिंग एजेंट्स हो उस कंपनी के, तो उनसे हम कनेक्ट करते हैं थ्रू लिंक्डइन. एंड आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 5 टाइम्स वर्क करता ही है. आपकी डील क्लोज हो नहीं हो, बट आपकी कन्वर्सेशन हो जाती है. सो लिंक्डइन में अपडेटेड रहना एंड लिंक्डइन को ग्रो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील वेरी सीरियस. लाइक अगर मुझे बोला जाए कि एक प्लेटफॉर्म बोलने, तो इट विल बी लिंक्डइन 100%. So, I mean, whatever success I've also seen at Midas, it's been that LinkedIn पे जो person has really communicated well, has done well. So it's a good platform to sort of get going. According to you, Siddharth, if today somebody wanted to start their business, what would be the first 3 things they need to do? So first thing will be product understanding. If you are planning to start एक्सपोर्ट बिजनेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मार्जिन्स कितनी है उस प्रोडक्ट में. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एवरेज मार्जिन्स क्या है उस प्रोडक्ट की. एंड थर्ड इज़, क्या वो प्रोडक्ट रेकरिंग है कि आपको बार बार ऑर्डर्स मिल पाए. तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड सेकेंड इज़, यू शुड चूज़ दैट काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे आप इजीली ट्रैवल भी कर पाओ और आप अपना कुछ एज हो उस मार्केट में आपके. फॉर एग्जांपल हम एशियन कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं. अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, सो यू कैन टारगेट वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड. एंड ये सारे मार्केट काफ़ी अच्छा पे करते हैं एंड यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा है. मैं दुबई नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं. इसके बारे में मैं आई विल टेल यू लेटर. बट सो मार्केट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ मार्केट, एंड थर्ड इज़ आप उस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, कितने ज़्यादा कंट्रीज़ में. और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है वो है कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में, बिकॉज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस इज़ रिलेशनशिप ड्रिवन. तो आप कितना ज़्यादा कनेक्शन और कितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप बना सकते हो, चाहे रेफरेंस से आप बनाओ, चाहे आपकी कोई रिलेशन है उस कंट्री में, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वंडरफुली वर्क करता है.
तो आपको मार्केट में एंट्रेंस भी बहुत ईजीली मिल जाता है. सो इट्स प्रोडक्ट, राइट कंट्री एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, these three things. And one of the things that you did mention in this conversation was स्केलेबिलिटी कितनी दिख रही है कि अगर आप एक देश में कर पा रहे हो तो एक देश में कितना बड़ा कर सकते हो और दूसरे देशों में भी कितना कर सकते हो. और आज के तारीख पे विनिंग प्रोडक्ट आप कैसे ढूंढते हो? अगर पता करना है कि एक विनिंग प्रोडक्ट मुझे ढूंढनी है तो कहाँ, मतलब कैसे करता है कोई? सो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपके लिए वही विनिंग प्रोडक्ट है जिसमें आपका कुछ एज है. अब जैसे मैं जैगरी से स्टार्ट किया तो मेरी वहाँ पे एज थी उस प्रोडक्ट में, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस प्रोडक्ट में, और मैं सोर्सिंग चीपेस्ट कर सकता हूँ इंडिया में उस प्रोडक्ट की. तो आपकी कुछ रिलेशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से, या तो आप उसको समझने चाहिए, या तो आपके पास उसकी बहुत अच्छी सोर्सिंग हो, चाहे आपके रिलेटिव्स उसका काम करते हो या उस मैन्युफैक्चरिंग में आपके कोई नोन में हो, तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है. एक्सपोर्ट सब कुछ हो रहा है इंडिया से. एक्सपोर्ट ऑनेस्टली इंडिया से अभी अगर हम लोग FY 25-26 की बात करते हैं तो $800 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के. टू बी प्रिसाइज $860 बिलियन विद अ जंप ऑफ 4.3%. सो डिमांड हर प्रोडक्ट की है. अगर आप लिस्ट खोलोगे, आप DGFT में जाके आप चेक कर सकते हो, या आप ट्रेड पोर्टल में जाके चेक कर सकते हो, सारी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ खासकर. सो आपकी एक सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, एंड आपके पास उस प्रोडक्ट को एक फुल कंटेनर एक्सपोर्ट करने का आपके पास फंड्स होना चाहिए उतना. आप वैसे ही प्रोडक्ट चूज़ करो जो आप अफोर्ड कर पाओ, जो आप इन्वेस्ट कर पाओ उस प्रोडक्ट में फॉर एक्सपोर्टिंग. तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि या तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट कैसे बिहेव करता है और इंडिया के किस कोने से आप सबसे सस्ता उसको सोर्स कर सकते हो. और आज की तारीख पे व्हाई आर पीपल सो हेजिटेंट टू सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग के बिजनेस में जाना? लाइक यू मेंशन दुबई, बहुत डर है कि पैसा नहीं निकलेगा वहाँ से. व्हाई इज़ दैट हैपनिंग एंड व्हाई इज़ देयर सो मच? इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ माइंडसेट. पीपल हैव फियर कि क्या पता अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो जाए, या पेमेंट टर्म्स कैसे रखना है, बायर से बात कैसे करना है, इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करना है, आप कैसे अपना बेस बना सकते हो किसी और मार्केट में. सो ये सारे जो चैलेंजेस है वो सबके साथ होते हैं. मैंने बिज़नेस एक्सपोर्ट में स्टार्ट किया था तो मैंने भी इनिशियली ये फेस किया था. आपको उसके लिए पहला चीज़ है आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे बिज़नेस वर्क करता है. मैं ऐसा फील करता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस से ज़्यादा सेफ़ बिज़नेस कोई भी नहीं है, जहाँ पे आपका पैसा भी सेफ़ रहेगा, आपकी रिटर्न्स भी अच्छी बनेगी. बट इट शुड बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है, कैसे पेमेंट टर्म्स वर्क करती है, एंड कैसे इनको टर्म्स आपको लेना है जहाँ पे आपकी पैसा कम इन्वॉल्व हो और आप सिक्योर्ड रहो. राइट. उस तरीके से उसकी हेजिटेशन तभी कम होगी जब आप पूरी तरीके यस, व्हेन यू नो हाउ बिजनेस वर्क्स. बिकॉज यहाँ पे एक्सपोर्ट में स्पेसिफिकली, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट में सब चीज़ सिक्योर्ड है, सब चीज़ की इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है. अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होती है तो गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म है ECGC, वहाँ पे आपको गारंटी मिलती है कि अगर आपको कोई बायर आपके साथ डिफ़ॉल्ट करता है तो इतने परसेंट, लाइक 80-90% गवर्नमेंट विल पे यू आपके शिपमेंट का. सो इट्स वेरी सिक्योर्ड, बट राइट नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, आई फील. सो डोंट डू, बेसिकली हुला हुल मत करो, पूरा उसको प्लान करके समझ के किसके साथ कर रहे हो, and there should be some credibility that you are going along with. And is it a good idea to actually say work with somebody who knows the business well enough at least to start with? डेफिनेटली मेरे पास कोई था नहीं. जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था तब उतने सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं थी एक्सपोर्ट्स को लेके. सो अभी अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म है, आपके सब कुछ आपको पता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पेमेंट टर्म्स पे काम करना है, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वही गैप हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं, एंड वही हमारी मोटिव है कि टू मेक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस practical, executable and understandable for
normal businesses and entrepreneurs. And I wanted to also understand that अगर कल उठ के मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो एक 5 स्टेप में क्या करना होगा मुझे? आपने बोला प्रोडक्ट वो सब मैं समझ गई, बट अगर टेक्निकली मुझे कुछ करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ. तो एक्सपोर्ट इज़ समथिंग कि आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट उठा के आप किसी और कंट्री की डिमांड फुलफिल कर रहे हो, ठीक है. And if someone wants to start export business from scratch, so this is how it looks. Their first shipment will look like this. First you have to decide your product. आपकी प्रोडक्ट में आपको, जैसे मैंने बताया, उसकी डिमांड, उसकी मार्जिन्स और उसकी स्केलेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए. अब क्या होता है कि प्रोडक्ट मैंने जैसे जैगरी से स्टार्ट किया तो मुझे उसकी नॉलेज थी, वैसे ही आपको वैसे ही प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो. सेकंड इज़ मार्केट. अब हर प्रोडक्ट हर कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होता है. सो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं GCC की, दुबई मार्केट की, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है. इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, बीट, स्पाइसेस, राइस, एवरीथिंग. अब यूरोपियन कंट्रीज़ है तो वहाँ पे वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं विथ हाई सर्टिफिकेशंस. इफ़ अफ्रीका मार्केट की बात करते हैं तो अफ्रीका मार्केट में थोड़ी कम कॉस्ट की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है बल्क कमोडिटीज़ में. सो आपको राइट मार्केट अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करना है. एंड थर्ड विल बी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन. एटलीस्ट आपकी GST, आपकी करेंट बैंक अकाउंट, आपकी कंपनी की AD कोड जो आपकी बैंक आपको जनरेट करके देगी, आपकी IC कोड, और आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, बीट RCMC, आपके अपेडा हो गई या फसाई हो गई, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट. सो वो आपको प्रिपेयर रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं बट आपकी बैकएंड और आपकी फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होती है, जो इनिशियली मेरे साथ भी हुआ था. सो आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि आप अगर इस जर्नी में जा रहे हो तो एटलीस्ट ये 5 चीज़ आप प्रिपेयर रखो. देन डॉक्यूमेंटेशन के बाद आती है पेमेंट टर्म्स की. पेमेंट टर्म्स पे डिस्कस करने के पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बायर के साथ सैम्पल्स शेयर करो. सो यू हैव टू सेंड द सैम्पल्स. जैसे मैं पर्सनली गया था, मैंने सैम्पल्स दिया, मैंने सैम्पल्स दिखाया. तो आप जब सैम्पल भेजोगे तो बायर विल चेक कि उसकी कलर कैसी है, उसकी मॉइस्चर कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है. सो वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है. एंड उसके बाद प्राइसिंग की बात आती है. सो अब अगर मेरे से बायर कोई प्राइसिंग मांग रहा है तो मैं डायरेक्टली बस एक्स फैक्ट्री रेट प्लस अपना मार्जिन जोड़ के उसे नहीं दे सकता हूँ. उसके अंदर बहुत सारे कॉस्टिंग होते हैं. सो मेजरली 3 तरह के इनको टर्म्स होते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. सो फर्स्ट इज़ एक्स वर्क. फैक्ट्री के बाद आपको फैक्ट्री के बाहर माल दे देना है एंड रेस्ट बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको एक्स फैक्ट्री रेट 100 रुपीज़ है, तो उसमें आप अपना मार्जिन आपने 10 रुपीज़ जोड़ा, आपने बायर को रेट दे दिया 110 रुपीज़. देन सेकेंड इज़ FOB, फ्री ऑन बोर्ड. तो उसमें क्या होता है कि आपको फैक्ट्री से आपकी गुड्स स्टफ़ करके कंटेनर में आपको उसकी क्लियरेंस करानी है, उसकी ड्यूटीज़ पूरी करनी है एंड आपको शिप में लोड करना है. जब प्रोडक्ट शिप में लोड हो गया उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है. एंड थर्ड इज़ CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. तो उसमें आपको शिप में लोड करने के बाद आपको फ्रेट का भी चार्जेस बियर करना पड़ेगा एंड आपको कंटेनर को बायर के पोर्ट तक डिलीवर करना होगा. सो ये 3 इनको टर्म्स होती है. अब आप बायर को प्राइस दे रहे हो और हम CIF में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बायर के पोर्ट तक डिलीवरी करनी है. तो वहाँ पे मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट जोड़ूंगा, लेबर की चार्जेस जोड़ूंगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जोड़ूंगा, पैकेजिंग जोड़ूंगा, देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं जोड़ूंगा, फिर कस्टम क्लियरेंस होते हैं उसकी चार्जेस होती है, लॉजिस्टिक की चार्जेस होती है, फ्रेट फॉरवर्डर्स की, तो वो मैं जोड़ूंगा एंड अपनी मार्जिन जोड़ूंगा उस पर. देन बहुत सिस्टमैटिकली एंड कैलकुलेटिव वे में प्राइस दिया जाता है. तो ये प्राइसिंग के बाद बायर से पेमेंट टर्म्स की बात होती है. अब पेमेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है. इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी कैपिटल पहले सिक्योर रहनी चाहिए. आपके कैपिटल सिक्योर है, उसके बाद आप प्रॉफिट्स देखो. तो बहुत सारे सेफ़ पेमेंट टर्म्स होते हैं, जैसे एडवांस.
100% एडवांस भी मिलती है, 50% एडवांस भी मिलती है. देन देयर इज़ LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत सिक्योर्ड लाइन होता है. देन देयर इज़ DAP, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट. बट आप एज अ बिगिनर हो, आपको एडवांस कोई क्यों देगा? दैट्स वेरी मच वैलिड कि आपको कोई एडवांस क्यों देगा. मुझे भी नहीं मिला था एडवांस स्टार्टिंग में. आपको 50% एडवांस नहीं मिल सकता, आपको 100% एडवांस नहीं मिल सकता, बट आपको 10% एडवांस तो मिल सकता है. और वो 10% एडवांस लेने के लिए आपको जो करना पड़े आप करो. आपको वहाँ जाना पड़े, आपको सब कुछ शेयर करना पड़े बायर के साथ, आप ट्रांसपेरेंट रहो, आप व्हाट्सएप में अपडेट करते रहो बायर को. बट जब वो 10% एडवांस मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हो. आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और आपको कुछ सोर्स करने के लिए आपके मैन्युफैक्चरर को कुछ अमाउंट ऐसे भी आपको पे करना पड़ेगा. और बायर अगर बैकआउट कर जाता है तो वो आपको बियर करना पड़ेगा वो चीज़. सो आपको 100% एडवांस नहीं मिल सकती है, बट आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो. लाइक यू कैन यूज़ टेक 10% एडवांस एंड रेस्ट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट. तो इसमें क्या होता है, आपको 10% मिल गई, आप सिक्योर्ड हो, आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सकते हो. देन जो 90% है वो आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करवा सकते हो. इसमें कैसे होता है कि मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया अपने एक्सपोर्ट शिपमेंट का, मैंने अपने बैंक को दिया. देन मेरे बैंक ने सामने वाले मेरे बायर जो इम्पोर्टर है उनके बैंक में वो डॉक्यूमेंट्स दिया. अब वो सामने वाले के बैंक उनके कस्टमर को बोलेगा कि सर आप पेमेंट करो, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं. तो वो पेमेंट डालता है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाती है और वहाँ से पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है. तो इट्स विन विन फॉर बोथ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्ट. सो इसलिए पेमेंट टर्म्स बहुत क्रिटिकल है एक्सपोर्ट बिजनेस में. देन उसके बाद आती है पैकेजिंग, प्रोडक्शन एंड शिपिंग. जब आपकी ऑर्डर कंफर्म हो जाती है, आपको एडवांस मिल जाता है, देन उसके बाद गुड्स की पैकेजिंग होती है, प्रॉपर लेबलिंग होती है जैसे आपके इम्पोर्टर को चाहिए. फिर एक्सपोर्ट उसमें एसेंशियल्स के उसमें स्टैम्प्स वगैरह लगते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट रेडी हो जाती है, उसके बाद उसकी स्टफिंग होती है प्रोडक्ट्स की. तो प्रोडक्ट स्टफ़ होके फिर कंटेनर लोड होके वो पोर्ट में जाता है, उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है. फिर कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो शिप में ऑनबोर्ड होता है प्रोडक्ट्स. और जब वो आपकी फ़र्स्ट कंटेनर लोड होती है एंड आपकी फ़र्स्ट शिपमेंट बोर्ड होती है वेसल में, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है. देन लास्ट आपकी है डिलीवरी एंड रिलेशनशिप मेंटेनेंस. अब लोग को लगता है कि मेरा शिपमेंट चल गया है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने बायर को अपडेट करके रखना पड़ता है कि कितने, अगर कुछ डिले हो रहा है या टाइम लग रहा है तो आपकी शिपमेंट कब पहुंचेगी. यू हैव टू रीअश्योर हिम कि क्वालिटी सही से गई है सब. हम आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. सारे डॉक्यूमेंट्स जो बायर आपसे मांगे वो स्मूथली सब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया और प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में आपने शिपमेंट किया. इससे क्या होता है कि आप अगर कोई बायर क्लोज़ कर रहे हो तो आप एक बार के लिए नहीं कर रहे हो. जैसे मुझे 3-3, 4-4 महीना लगा एक बायर को क्लोज़ करने में, तो मैं इतना एफर्ट्स डाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उससे रेगुलर बिजनेस करूँ, राइट. तो प्रॉपर कम्युनिकेशन उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट रहे तो बायर आप ही से ट्रेड करे. तो ये 8 स्टेप्स है जिसमें लाइक स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट सेलेक्शन से लेके रिलेशनशिप बिल्डिंग. इससे इजी वे में एक्सपोर्ट नहीं समझ सकते और इतना ही है एक्सपोर्ट. Wow. So Siddharth, you gave us like a mini lesson on how to start and how to, sort of get on a journey of an exporter in India. One of the things that मैं बहुत interested हूँ to know, because we celebrate failures here at Midas, कि जितना फेल हो सको ना हो. तो मुझे आपके एक फेलियर या सेटबैक के बारे में सुनना है जिससे आप बहुत सीखे. बहुत सारे हैं वैसे तो, बट अभी रिसेंटली मेरी एक शिपमेंट थी, तो मैं बताता हूँ बैकग्राउंड उसका. मैं था वियतनाम में और मैं वियतनाम एयरपोर्ट के बाहर आई वाज वेटिंग फॉर समवन, और वहाँ पे कोई साउथ ईस्ट एशियन कोई थे. उन्होंने मुझे स्माइल किया, मैंने भी स्माइल किया, और मैं वेट कर रहा था, उनको टाइम था आने का, मैं चल गया उनसे बात करने. और मैं वियतनाम अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस से रिलेटेड ही मैं कुछ गया था, मेरी शिपमेंट थी वहाँ पे. तो मैं गया उनसे बात करने. आई टॉक टू हिम, आई आस्क्ड हिम लाइक आप विजिट क्यों किए वियतनाम में. ही वाज लाइक ही इज़ एन इम्पोर्टर, ही लिव्स इन साउथ कोरिया एंड
उनको कुछ सोर्स करना था, उसके लिए वो वियतनाम आए। तो मेरी आईज़ पूरी स्पार्कल हो गई एंड आई वाज लाइक कि आई एम ऑल्सो एक्सपोर्टर। मैं उनको दिखाया अपना वर्क्स वगैरह, मैं नंबर एक्सचेंज किया उनके साथ। उनकी फ़्लाइट थी तो उनको जाना था। फिर मैं उनसे ऐसी बात करते रहा, मैं इंडिया की सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहा था। मैं उनसे लाइक मोर देन 2 months आई हैड कन्वर्सेशन विथ हिम एंड आफ्टर फ्यू डेज़ उनका एक टेक्स्ट आया दैट वी वांट पिस्ताशियो, वी वांट टू इम्पोर्ट पिस्ताशियो टू साउथ कोरिया। क्या आप लाइक डू यू डील इन इट, क्या आप हेल्प कर सकते हो? सो मैं ऑलरेडी उस पिस्ताशियो में वर्क करता था। मुझे पता था कि यूएस में पिस्ताशियो की रेट उस समय $27 थी पर केजी की। एंड मैं ईरान से काम कर रहा था, ईरान दुबई से, तो वहाँ पे अराउंड $24-25 थी। तो मैं बोला कि यार डेफिनेटली वी कैन वर्क। मैंने उनको सैम्पल शेयर किया पिस्ताशियो की, यूएस क्वालिटी की, एकदम बेस्ट क्वालिटी मैंने उनके साथ शेयर किया और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। और मैं उनको रेट दिया $23, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क करता हूँ, हमारे सप्लायर है, मुझे बहुत अच्छी रेट मिल गई थी। मैं तो उनका वो बोले कि विल डू सैम्पल ऑर्डर। एयर शिपमेंट थी, तो 1 टन की ऑर्डर थी, ठीक है। तो इस साइड कि हम लोग सैम्पल ऑर्डर करेंगे, आई वाज फाइन। तो वो $23 की जो मैंने उनको रेट दिया था, मेरी कॉस्टिंग थी उसमें $19.5 पर केजी एंड $50 सेंट्स मिसलेनियस एक्सपेंस थी, तो $20 की मेरी कॉस्टिंग थी। अब मैं उस समय दुबई ट्रैवल कर रहा था, तो मैं उनको बोला कि आपको ईरान से शिपमेंट चलेगा क्या? ही वाज लाइक कि नहीं, ईरान विल नॉट वर्क। मैं बोला दुबई, तो दे वर फाइन विद इट, दुबई से आप शिपमेंट कर सकते हो। तो मैं उस समय दुबई ट्रैवल करने वाला था, मैं उनका पूरा शिपमेंट प्रिपेयर किया। मैं वहाँ के सप्लायर जो थे उनको एडवांस दिया, विच वाज अराउंड 3 लाख रुपीज़। उनको एडवांस दिया एंड मैंने सब पैकेजिंग वगैरह स्टार्ट करा दिया। फिर मैं उनको मैसेज किया पेमेंट के लिए कि हमारी पेमेंट टर्म्स पे बात हुई थी कि एडवांस, ही विल डू एडवांस, 100% एडवांस की बात हुई थी, क्योंकि मैं बहुत समय से उनसे बात कर रहा था एंड हमारी काफ़ी अच्छी कनेक्शंस बन चुकी थी। मैं नॉर्मल लाइफ के बारे में भी बात करते थे एक दूसरे से, मैं कभी भी उनको कॉल कर लेता था जस्ट टू बिल्ड रिलेशन, क्योंकि मुझे पता है बाद में ये काम आएगा मुझे। तो एडवांस का बात था, बट मैंने उनको टेक्स्ट किया पेमेंट के लिए। मैंने बोला कि शिपमेंट रेडी हो रहा है, प्लीज़ सेंड एटलीस्ट 20% एडवांस। तो शिपमेंट वैल्यू उस समय 25 लाख की थी INR। तो मैं उनको बोला कि आप 5 लाख एटलीस्ट आप ट्रांसफ़र कर दो। कोई मैसेज नहीं आया उनका मुझे। मैं नेक्स्ट दिन भी उनको मैसेज किया, आई थॉट ही मस्ट बी बिजी। नेक्स्ट दिन मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। थर्ड दिन मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 वीक चल गया एंड वहाँ पे अब मैं कुछ परचेज़ किया हो तो आई हैव टू सेल इट ऑफ, किसी सप्लायर से लिया हो तो, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। देन मेरे सप्लायर का कॉल आया कि रेट्स गिर चुके हैं। मैं सोचा कि मैं आई विल सेल इट इन दुबई इटसेल्फ, क्योंकि उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और मैं फंस चुका था, मुझे लेना पड़ता वो माल। तो मैं उनको बोला कि आप उसको बेच दो, तो उन्होंने कहा कि मार्केट गिर गया। तो मुझे वहाँ पे मैं सेल किया, मुझे लॉस बियर किया, मैं 2 लाख लॉस बियर किया। देन उनका मैसेज आता है कुछ दिन के बाद कि हाय सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी। तो उस समय चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा था, तो उन लोग का ऐसा है कि दे डोंट वर्क। चाइनीज़ न्यू ईयर चलता है तो वो कुछ भी नहीं काम करते। तो आई टोल्ड हिम कि एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म मी। मैंने इतना एफर्ट्स डाला आपके लिए, मैं दुबई स्पेशली ट्रैवल किया बिकॉज आई रियली वांटेड दैट शिपमेंट साउथ कोरिया का। तो ही वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, जो भी आपका लॉस हुआ वो हम बियर करेंगे, आप प्लीज़ शिपमेंट करो। एंड आई वाज नॉट ओके विथ इट। देन ही वाज लाइक ही विल गिव यू 100% एडवांस। आई ट्रस्ट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, सो आई एम ओके विद इट। आप 100% एडवांस लो और आप शिपमेंट पैकेजिंग एंड सारे प्रोसीजर स्टार्ट करो। तो उनका एडवांस आया, उसके बाद मैं परचेजिंग किया, तो उसमें मेरे को और ज़्यादा मार्जिन बच गया, बट मैंने लॉस भी बियर किया था। तो फिर फाइनली वो शिपमेंट हो गया। तो ये शिपमेंट में बहुत ज़्यादा लर्निंग भी था, सेटबैक भी था, क्योंकि मैं लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका था। बट वही बायर मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट कस्टमर है, मैं रेगुलर उनके साथ बिज़नेस करता हूँ। सो उस शिपमेंट में मेरी पहली जो सैम्पल शिपमेंट थी वो 1 टन की थी। नाउ इन्होंने मुझे 3 टन्स की ऑर्डर दी थी। तो इस शिपमेंट में आई अर्न अराउंड लाइक 7 लाख रुपीज़
और मैंने 2 लाख लॉस बियर किया था। वो ही वॉज रेडी टू पे, बट मैं बोला इट्स ओके, इट्स ऑन मी, बिकॉज मुझे पता है ये रेकरिंग है, ही विल कीप इम्पोर्टिंग फ्रॉम मी एंड क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। सो मैं लॉस के बाद मैं आई अर्न 5 लाख एंड मैं आज तक उनके साथ रेगुलर शिपमेंट्स कर रहा हूँ एंड वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर है राइट नाउ। One of the things that comes up during this entire conversation with you is लोगों के साथ रिश्ता maintain रखना, and really dealing with people in the right spirit is so important when you are a founder, you are a business owner. आपकी टीम होती है, आपके suppliers, आपके vendors और आपके clients, सबके साथ मैनेज करके आपको आगे बढ़ना है। तो कौन सा माइंडसेट सिद्धार्थ कीप्स यू गोइंग कि यार कितना भी लफड़ा हो जाए मुझे ठीक से आगे बढ़ना है? हाउ डज दैट वर्क फॉर यू? सो यू शुड ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, ये रिलेशनशिप में चलता है ये। सो आप एक टाइम आप किसी बायर के लिए वर्क कर रहे हो, किसी बायर पे एफर्ट्स डाल रहे हो, तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म। और इस बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपने एक बायर, अगर आपकी एक बायर आपने किसी मार्केट में फाइनलाइज कर लिया, तो वो ईयर्स ऑन ईयर्स चलता है, बिकॉज दे डोंट शिफ्ट ऐसे ईजिली नए सप्लायर्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आप एडवांस चाहते हो उनसे, तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमेशा यू हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस के लिए। अभी मैं उनसे 2 लाख जो मैंने बियर किया वो मैं उनसे ले सकता था, बट मुझे पता है कि मैं वो नेक्स्ट शिपमेंट में ही कवर कर लूँगा। सो ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकंड इज़ अडेप्टिबिलिटी। अब एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस और चेंजेस होते रहते हैं ऑल द टाइम, चाहे वो करेंसी के हो, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे वो फ्रेट्स के रेट हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई, ईरान, यूएस एंड इसराइल के बीच में वॉर हो रहा था, तो हमारी बहुत सारी शिपमेंट प्लान थी। मेरी दुबई में शिपमेंट थी और मेरी इंपोर्ट शिपमेंट आने वाली थी ईरान से। बट यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट एंड काम। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। एंड थर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होनी चाहिए। अब जैसे मेरी शिपमेंट्स थी, मेरी ईरान की एक शिपमेंट थी बनाना के लिए, फ्रेश बनाना G9 कैवेंडिश। तो मैंने पैकिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज सब कुछ करा दिया था। देन न्यूज़ आया कि वॉर एक्सकेलेट हो गया। अब वहाँ पे मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूँ, बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पे बेचता तो लॉस हो जाता, और मैं इमोशनली डिसीजन लेता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक चला था और मेरी जो कंटेनर थी वो स्टक हो जाती। तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं लोकल मार्केट में ही बनाना को सेल कर लिया। मैंने लॉस बुक कर लिया एंड मैंने काम लिया कि आई विल मेक दैट मनी अगेन नेक्स्ट शिपमेंट में। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा सेफ हो गया। सो या मेजर थिंग्स दैट यू रियलाइज दिस इस धंधे में स्टबर्न होके नहीं चलता है। सो एवरी डे इज अ न्यू इशू एंड एंड यू आर फायर फाइटिंग बेसिकली। 99 things are going wrong, one thing will go right for you. Like every day कभी कोई बायर ने पेमेंट नहीं किया, कंटेनर टाइमली पहुंचा नहीं, स्टफिंग नहीं हुआ, रॉ मटेरियल जो सोर्स किया था वो ख़राब क्वालिटी की आ गई। सो इट्स ऑन गोइंग थिंग, रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। And the geopolitical scenario will always impact the import-export of any country. लास्ट फ्यू मंथ से मैंने सबसे कम शिपमेंट किया है, बिकॉज दुबई मार्केट पोर्ट्स भी बंद थी। देन कोरफकान पोर्ट है दुबई में, वो चालू हुई तो उसमें भी ब्लास्ट हो गया। ईरान से मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस होता था, पिस्ताशियो का, ड्राई फ्रूट्स का, एग्जॉटिक फ्रूट्स का, एप्पल का, तो वो पूरा बंद हो गया। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को, और उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ता है एंड यू हैव टू गो विद इट। जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से you have to be extremely agile till Donald Trump is going to do something crazy, so it's going to impact you immediately. I have so many posts that I see on regular basis on your page talking about the Indian government and of course all the good work that they are doing. So I wanted to understand, in the last
5 years, say, how has the Indian government really worked on the export market and the import market? But import ज़्यादा I think काफ़ी कम हो गया है, but export 100% बढ़ा है. So the Modi government has definitely helped traders and exporters phenomenally. What do you say about it? So abhi right now government is helping exporters with the right guidance. They are providing funds for exports with very minimal interest rates. Then बहुत सारी incentives दे रहे हैं गवर्नमेंट. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको रोड टेप मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट. आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एक्सपोर्ट कर लोगे ना, कि आपने जितना में सोर्स किया उतना में आपने एक्सपोर्ट कर लिया, स्टिल यू विल बी अर्निंग बिकॉज ऑफ रोड टेप. गवर्नमेंट्स आपको बहुत सारी बेनिफिट्स दे रही है. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जीएसटी में हमें बेनिफिट्स मिलता है, जीएसटी हमारी रीइंबर्स हो जाती है, तो वो अलग से प्रॉफिट है. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब जीएसटी की कॉस्टिंग इंक्लूडेड रहती है, बट जब शिपमेंट चल जाती है तो उसके बाद आप उस जीएसटी को रीइंबर्स कर सकते हो. तो वो हम लोग काउंट नहीं करते प्रॉफिट में. वो लाइक इट्स लेफ्ट इन गवर्नमेंट्स अकाउंट ओनली. जब हमें चाहिए रहता है, फंड्स की लिक्विडिटी चाहिए रहती है, तब हम ले लेते हैं. एंड गवर्नमेंट राइट नाउ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है वेयर यू कैन कनेक्ट विद इंटरनेशनल बायर्स एंड यू कैन गेट बायर्स डेटाबेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड कनेक्ट. वहाँ पे आप किसी भी बायर के साथ, इंटरनेशनल बायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपको अगर प्रोडक्ट में रिसर्च करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो. देन देयर इज़ FIO, फेडरेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. आप उनके साथ जुड़ सकते हो. वो आपको बायर्स की डेटाबेस देती है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट से और जो ऑलरेडी अवेलेबल बायर्स है. देन आप अपेडा से रजिस्टर कर सकते हो. अपेडा इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, बीट राइस, स्पाइसेस, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो तो वो भी आपको डेटाबेस प्रोवाइड करती है. दीज आर ऑल गवर्नमेंट बैक्ड एक्सपोर्ट बॉडीज़. Then there is a platform called Indian Trade Portal. So Indian Trade Portal में आप अपने प्रोडक्ट का HS कोड डाल के आप उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सर्च कर सकते हो. इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल राइस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप उसमें राइस का HS कोड डालोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस किस कंट्री को टारगेट करना है. देन देयर आर लॉट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सो सारी इंडस्ट्री की डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती है. देयर इज़ EEPC फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, देन देयर इज़ EPCH फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, देन देयर इज़ स्पाइसेस बोर्ड फॉर स्पाइस एक्सपोर्ट, देन देयर इज़ APEDA एज आई टोल्ड यू फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देन देयर इज़ MPEDA फॉर मरीन प्रोडक्ट्स. तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको बायर से कनेक्ट भी कराते हैं. इनका काम ही है बायर सेलर का मैच मेकिंग. राइट. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट एंड वो जितना पॉसिबल है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए. So as an entrepreneur, as a business owner, you're very happy with how things are. Yes. गवर्नमेंट और आप इस टीम में जाते हो तो आपको बैकएंड में ये पता होना चाहिए कि आपके साथ गवर्नमेंट है. Correct. बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और नए नए इंसेंटिव्स एंड नए नए अपॉर्चुनिटीज ला रही है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए. समझ गए. राइट. So my last and final question before we get into the rapid fire was, आज अगर आपको कोई एंटरप्रेन्योर को मैसेज देना है जो शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, what would that message be to that person? So I would say don't emphasize on word global. ये इतना टफ नहीं है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में होता है. I would suggest them to start small, start smart and start with proper learning. अगर आप इस मार्केट में घुस रहे हो तो आप चूज वन प्रोडक्ट, वन मार्केट एंड ट्राई टू कंप्लीट वन शिपमेंट. अगर आप ये स्टेज पार कर लेते हो, आप सक्सेसफुली अपना फर्स्ट शिपमेंट कर लेते हो, तो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव, आपकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन ग्लोबल मैनर की करेंसी क्या चल रही है, डिमांड कहाँ है, मार्केट कहाँ पे मेरे प्रोडक्ट का, एंड इट हेल्प्स यू अलॉट. एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बिजनेस है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अभी इंडिया के लिए. So a lot of encouragement. Right. You're not dissuading them from doing No, this. sir. You are actually saying you should do it. Everyone should do. That's how
Indian economy will boost, and that's how you can make a good money. और आप अपने local market में जो आप challenges face कर रहे हो, that's the only way you can fight. So अगर हम locally चालू कर भी रहे हैं तो उसको globally लेके जाना is not something that is unheard of. It is totally possible. It's achievable. So वो डर ना रखे, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके you can really expand on your Right. Lovely. So are you ready? Yeah. Perfect. So one word to describe import and export. Opportunity. Export or import? Export. First deal, was it a profit or learning? Learning. India's most underrated export product. Plant-based leather products. One country every Indian entrepreneur should explore. Africa. Biggest myth about global trade. That you need huge capital to start it. Big Alibaba or direct networking. Networking and free government platforms. Risk or stability. Calculated risk. First crore, was it fast or sustainable? Sustainable and achievable. Documentation or negotiation, which is tougher? Documentation initially. Okay. One habit that made you successful. Consistency. So happy you said that. One mistake beginners must avoid. Not verifying the buyers. Yes. Morning routine or night hustle? Morning clarity. Build brand or chase margins? Build your brand. One skill every exporter must have. Good communication skills. Red cost or product quality? What matters more? Product quality. One book or podcast or resource that influenced you a lot? Biopic on Dhirubhai Ambani. Deal breaker in international business? Credibility and trust issue. Thinking local or thinking global? Global audience. One line advice to your younger self? Should have started earlier. Introvert or an extrovert? Ambivert, I'd say. Leader or builder? Builder. Emotional or practical decision maker? Practical decision maker. Calm under pressure or thrives in chaos? Calm under pressure. Lone wolf or a team player? Team player. So I genuinely enjoyed this entire conversation with you. It was really, really amazing. Learned so much. I've had a lot of opportunities to meet people who are in the business, but सच में वो layman's language में आपने मुझे आज समझाया that this is how it works. Right. Loved this conversation. Thank you so much for your Thank time. you for having me. And I really, really enjoyed it. Thank you. I hope today's entire episode has made you all understand what it is to really think globally. As entrepreneurs, it's extremely important to look at the product, the scalability, and how much you're going to make through that business. It's an interesting concept, but start small, begin today. It was a real pleasure hearing from Siddharth step by step how to get there. I hope you've really, really learnt a lot and continue watching Insights with Midas.